द सुपर टैलेंटेड अनु मलिक जी। जब आप संडे से आते लिख रहे थे, मतलब कंपोज कर रहे थे, उस वक्त हमारे जवान या हमारी कंट्री ऑलरेडी वो एक दौर से गुजर चुकी थी। आपने अपने दिमाग में क्या रख के ये सारे कॉम्पोजिशंस किए? The most honest confession which I can make at the moment, जो आपने सवाल किया जवाब ये है, जब आप अपने देश से प्यार करते हो ना, तो वो जज्बा आ ही जाता है। यू नो, आई लव इंडिया। और उसमें जेपी दत्ता साहब ने मुझे कहा कि मैं बॉर्डर शुरू कर रहा हूँ, और मैंने एक ट्यून सुनाई थी उनको, which he didn't react. उन्होंने मुझे कुछ सीन्स जो शूट करते हैं ना, जस्ट कैमरा स्टिल्स, मुझे कुछ ऐसे कुछ 2-4 स्टिल्स दिखाए, एंड he showed me the frost bites of soldiers. You know, जो स्नो के डीप में दिनों दिन खड़े रहते हैं. Showed me people, he told me this is Rajputana rifles. ये गुरखा रेजिमेंट है. When I heard these words, I went deep into what JP Saab is telling me about. And then when I had a chance to meet ex-army chief General Malik, वो एक ऐसा emotional meeting थी with me, JP Saab, and I came back completely shocked. The stories मैंने सुनी of how they actually live and what they do for the country. मतलब people have no clue. हम cities में रहते हैं. You know, we are insulated from a lot of things. और हमें लगता है कि भाई everything is fine, everything hunky dory. It's because of these people. It's because of the jawans. And जब उन्होंने कहा कि मैं गाना लिखवा रहा हूँ जावेद साहब से, और मैं I'll give you the words. I said okay. Javed Saab and JV Saab came to my house and gave me those words. And they were not words. There was a फरमान होता है ना कुछ 14 पेज का. संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछो. तो मैंने जावेद साहब को देखा, मैं बोला सर ये पोइट्री है कि ये प्रोज है कि ये एक डायलॉग चल रहा है. आई डोंट नो. एंड जेपी साहब हैड अप्रूव्ड ऑफ इट. जावेद साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि अन्नू को 1 महीना लगेगा गाना बनाने के लिए. एंड अजीब सी बात है, जेपी हैड लॉक्ड द डोर ऑफ माय सिटिंग रूम आल्सो. आई सेड व्हाट इज ऑल दिस, आर यू ऑल किडनैपिंग मी? मुझे क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं, अभी आप ये वर्ड्स आप लिखो और कह दो कि 1 महीना लगेगा. उसमें जो एक लाइन है, ए गुजरने वाली हवा बता, nobody knows but the composition started from there. अच्छा. And the sacrifice of all the soldiers came flooding into me like an emotional wave. And I started humming धीरे से, ए गुजरने वाली हवा बता, ऐसे मैं गा रहा था. मेरा इतना काम करेगी क्या? ऐसा नहीं. जेपी साहब रुक में क्या गा रहे हो? जावेद साहब से क्या गा रहे हो? ये मुखड़ा, हमारा मुखड़ा तो ये नहीं है. और ये लाइन ऐसी अच्छी लग रही है, मेरे गाँव जा तरारे. And when I sang this note, ऐसे गाता जा रहा था, but I was not very sure. But suddenly I started singing. It just happened. And I said, can I put some words? जावेद साहब आपने जो लिखा try करूं, पर तुम गाओ. And I started humming. संदेशे आते हैं, and especially that line कि घर कब आओगे. Moment I sang this, Javed Saab just gets up. He had tears in his eyes, and he said, you know, it was just 7.5 minutes you composed the song. And he took a cassette out and he took my sign on it. So and so date. And I think Javed Saab has that cassette. In fact, Javed Saab would go to the extent of saying on this autobiography, I think that's the best compliment. He said, when I talk about Annu Malik, it's like lighting a cigarette in front of a volcano. I think for me, it's a huge compliment. While the recording was on, Roopji was supposed to sing this line, "Ae guzarne wali hawa bata." And Sonu's father was there, dad was there. Sonu was extremely nervous because it was his first major breakthrough recording ever. And Annu Malik, the hip happening composer, Sonu very young, fully geared up to sing this song. And suddenly I'm looking at Sonu and Roopji. मैं देख रहा हूँ ये जो "ए गुजरने वाली हवा" जो रूपजी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं. And I told JP, can I do something? I said, what? I want to change it. I want Sonu to take this line off. I go inside and said, Sonu को मैंने उसी वक्त मैंने बाजा पर बोला, इधर बैठ. And I started humming this line. I said, learn it. He learned that. The rest, as you say, is history. He sang that song at 11.5-minute song, and by the time the song got over, उस वक्त I got a big compliment from, you know, the staff was crying, the recorders were crying. It was such an emotional thing. And it was a Destiny's Child, I would say, this song. ये आमद हुई. तो I'm grateful to God. हेलो आसिफ जी, मैं मधुरिमा बोल रही हूँ 92.7 बिग एफएम से. हाँ मधुरिमा बोलिए, हाउ आर यू?
आई एम गुड सर। मैंने सुना आपको संदेशे आते हैं गाना बहुत पसंद है। जी जी। हाँ आसिफ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनु जी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। और मुझे पता लगा आपको मेरा गाना बॉर्डर का संदेशे आते बहुत पसंद है, और आप किस तरह अपने बैंड में भी इसको बजवाया करते थे, और क्या क्या होता था उस वक्त जब ये गाना बजता था? देखिए, मैं तो बॉर्डर मैन हूँ, करीब 36.5 साल नौकरी किया है मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और तो उसके लिए भी मैं आपको सलाम देना चाहता हूँ, आपको और आपके जितने भी साथी हैं, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूँ, बड़ा मुरीद हूँ आप लोगों का। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। इट इज वेरी नाइस टू हियर दिस, because at times it is felt that they are the most neglected lot. ये ऐसा ना सोचे, मैं बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक शो पर गया था और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ आर्मी जवान मिले थे, और उनको सबको छोड़कर मैं उनके गले मिला था। very nice and very nice and considerate of you. रोहतंग पास हो, सियाचिन हो, या ठंड जगहों में जाके जो गार्ड करते हैं, जो मेहनत करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, जितनी सलामी आप लोगों को दी जाए कम है। Thank you very much on behalf of all the Faujis. Thank you for these sentiments which you have expressed. और ये दिल की सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ रेडियो के जरिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो गाना संदेशे आते बन ही नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी रियलिटी दिखा रहा है वो गाना जो है, और जो पिक्चराइज भी किया गया है, बड़ा रियलिस्टिक ये जो दिखाई आप दे रहा है। अपने जो सोल्जर्स अपने वाइफ्स के बिना रहते हैं, अपने बहन के बिना, भाई के बिना, माँ के बिना, पिता के बिना रहते हैं, बच्चों के बिना रहते हैं, और सब कुछ भूल कर अपने देश की रक्षा करते हैं। हम तो कहते हैं हम झुककर सलामी देना चाहते हैं। Thank you very much. I wish everybody realizes this. Very heartening to hear this. शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मधु जी के जरिए, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। This lifts up the morale of all my men and the officers, because it is very heartening to hear that people care for us. Of course we care because you care for us. It's because of you कि हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं। Thank you. And हम लोगों की जो फीलिंग और स्पिरिट है काम करने की, वो यही है कि जान, हाथ, पैर कुछ भी चला जाए, लेकिन देश की हिफाजत। आसिफ भाई, फिर आप जाते जाते आपके लिए मैं ही गुनगुना देता हूँ आपके लिए गाना। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछी जाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना है। वेरी नाइस। आपने दिल जीत लिया हर फौजी का। आपसे हमने प्यार सीख लिया। थैंक यू बिग एफएम, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। हम जानेंगे अनु जी से उनकी जिंदगी में वो कौन से प्यारे शख्स हैं जो उन्हें बेहद खुशी देते हैं। बस कुछ ही देर में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी